welcome to Shambhavi e-learning classes. Myself, Shambhavi Priya, standing before you. So we are learning class 7 geography environment chapter number 1. So what we had learned in last session was that what is environment, what were the components of the environment, what are abiotic and biotic factors. We had also learned about interactions and some link between what was ecosystem, okay? And I promised you that I will start ecosystem in the next session. So I came up here with the next session, which is the ecosystem. In this module, we are going to learn about types of, first what is ecosystem, what are the types of ecosystem, how energy flows from the ecosystem, okay? What are the food chain and food webs we have, and at last we will learn about the types of ecosystems examples. Okay, are you ready? So let's begin our session. Okay, so I hope everything is well. So let's go. So let's talk about what is exactly the ecosystem is. तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. इकोसिस्टम होता क्या है एग्जैक्टली, उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल क्या होता है, मीनिंग क्या होता है उस वर्ड का, एक्वाटिक क्या होता है वो लर्न करने वाले हैं. फूड चेन, फूड वेब क्या होता है वो भी लर्न करेंगे, और फिर बाद में एक्वाटिक सिस्टम के बारे में एनर्जी जैसे फ्लो होती है वैसे लर्न करेंगे. तो चलते हैं इकोसिस्टम के बारे में. इकोसिस्टम होता क्या है एक्चुअली, ओके? What is exactly the name ecosystem suggest? What do you think? What is ecosystem? Okay, ecosystem is nothing but a community or a group of living organisms. Okay, community or the group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment, whether it is not or not. Okay, so इकोसिस्टम होता क्या है, वो एक कम्युनिटी होती है और एक ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब समझते हो. बायोटिक फैक्टर्स मैंने बताया था. बायोटिक फैक्टर मतलब जो ग्रुप जो और सस्टेन लाइफ करते हैं, जो लाइफ सस्टेन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? So that live in and interact with each other in a specific environment, okay? And they interact with each other in a specific environment. That's why these interactions occur, right? अब ऐसे तो interaction होता नहीं है. So they interact with each other in a specific environment. Why it is said specific environment? Because the whole earth is one ecosystem, okay? So what is ecosystem? Ecosystem is nothing but the community or a group of living organism, okay? Living organisms like trees, animals, plants. So like yesterday I gave you example of a deer and a flower, right? The deer eats that flower, leaves, he consumes energy, okay? He consumes energy from the flower, and as he dies, okay, as he dies, the energy with the help of bacteria, deer's body get decomposed, and that energy, at 10% of the energy from the deer's body get decomposed, and the rain, when rain occurs, that get mixes up and the birth of a new life begins, okay? So you got the ecosystem. So that deer and the flower, where we found that deer and flower is nothing but the ecosystem. So we are going to learn about, there are two types ecosystem, okay? Types of ecosystem. So if we talk about types of ecosystem, there are two types of ecosystem. I talked yesterday. First type of ecosystem was terrestrial ecosystem, right? And second type was aquatic ecosystem. What is aquatic and terrestrial we will learn now, okay? So terrestrial मतलब होता है, terrestrial का जो word ही होता है ना, terrestrial मतलब होता है land, और aquatic का जो word होता है ये होता है water. तो समझ सकते हो, वो इकोसिस्टम जो लैंड पे सर्वाइव करता है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, और जो वो इकोसिस्टम जो वाटर सरफेस पे सर्वाइव करता है उसको कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये पिक्चर में बस हम देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कितने हैं. अब ये वाटर है, वाटर मैंने वाटर एक नॉन लिविंग ओके, वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? इट्स अ एबायोटिक कंपोनेंट. सो क्या लिखेंगे हम, एबायोटिक. वाटर क्या है, एबायोटिक. अब ये एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, श्रब्स, लीव्स, ये सब क्या है, ये सब हो गए बायोटिक कंपोनेंट. ये पूरा जो है बायोटिक और एबायोटिक को कंप्राइजिंग करके बनता है हमारा इकोसिस्टम, है ना? इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी और अ ग्रुप. ये जो लिविंग बींग्स है ना, ये जो एनिमल्स है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और ये इंटरैक्ट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है? ये जैसे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं,
तो मतलब एक दूसरे को मारते हैं ना, कंज्यूम एनर्जी के लिए खाना जरूरी होता है, खाना खाने के लिए हम सबको मारना पड़ता है एक दूसरे को। तो वही खाने के लिए उनका जो कंज्यूम एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं ना, उसको ही हम इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन करते ही क्या बनता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तभी बनता है जब सोसाइटी में, कम्युनिटी में या फिर ग्रुप में इंटरेक्शन हो, ठीक है। इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड वी आर गोना लर्न अबाउट। ओके, सो लाइक दिस दैट इन कांस्टेंट इंटरेक्शन। अब ये नहीं कहेंगे कि एक इकोसिस्टम में मतलब काउंटेबल इंटरेक्शंस है, नहीं, वो होते जाते हैं, कांस्टेंट में होते हैं, ठीक है। अपना जो अर्थ है, एक मिनट पे, एक सेकेंड में पता नहीं कितने सारे इंटरेक्शंस हो जाते हैं, है ना। ये इंटरेक्शंस होते किससे हैं? ये ट्रीज है, ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये श्रब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, इन सभी से इंटरेक्शन पॉसिबल है ना। सो यही कहेंगे हम इकोसिस्टम के बारे में। तो जैसे कि मैंने पढ़ा था, देयर वर टू काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट वर द एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो मैंने कहा था वो लैंड होता है, और एक्वाटिक मतलब क्या होता है? वाटर, पानी, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, डिफरेंस पता चल ही गया होगा, एक्वाटिक क्या होता है और टेरेस्ट्रियल क्या होता है। ये बात सही है, भले ही उनका टाइप ऑफ लिविंग अलग है, लिविंग जैसे रहते हैं वो भले ही अलग है, लेकिन हाँ जैसे वो इंटरैक्शन जो रहते हैं वो क्वाइट सेम ही रहता है, ठीक है। जो इंटरैक्शन दोनों करते हैं वो क्या होता है? क्वाइट सेम रहता है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मैंने कहा था अब इकोसिस्टम्स के एग्जांपल पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड, सी, ओशन, मराइन, राइट, मराइन। एक्वाटिक मतलब पानी, पानी से क्या क्या एग्जांपल आएगा? पॉन्ड आएगा, सी आएगा, ओशन आएगा, और इन सभी को मिला के क्या आएगा? मराइन इकोसिस्टम बनेगा। एक्वाटिक का अगर आप सिनोनिम मांगोगे तो अब मैं बता दूंगी, एक्वाटिक का सिनोनिम हो जाएगा मराइन, ठीक है, मराइन। सो टेरेस्ट्रियल का जो इकोसिस्टम होता है वो फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट एरिया होता है आपका, वहां पे भी इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड होता है। ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, समझे? एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो अभी हम बात करेंगे मराइन इकोसिस्टम की, तो चलिए मराइन इकोसिस्टम पे। So what is marine ecosystem? The part of the broader category of the aquatic system. Marine ecosystem होता है, अभी आपने पढ़ा होगा, ये जो अर्थ है, अर्थ का 70% क्या है? पानी है, वाटर। अर्थ का जो होता है 70% क्या होता है? वाटर, पानी से घिरा हुआ रहता है। सो कवर मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, एंड एज द वाटर हैव अ हाई सॉल्ट कंटेंट। अब 70% में क्या इंक्लूड करेगा? सीज, ओशंस, और ओशंस में क्या होते हैं? हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। हाई सॉल्ट कंटेंट मतलब जहाँ पे ज़्यादा नमक होता है। अब पानी में नमक ज़्यादा पाया जाता है तो हाई सॉल्ट कंटेंट आएगा, है ना। सो they covers more than 70% of the earth's surface, the water, and have a high salt content. Okay, they are the part of the broader category of the aquatic system. Some examples of the marine ecosystems are the offshore systems. Offshore systems मतलब यही एग्जाम्पल्स रहते हैं ना कई तरह के सीज, वैसे उसको ऑफशोर सिस्टम्स कहेंगे। सो लाइक द ओशन सरफेस, डीप सी लाइक pelagic sea or the sea floor, but there are also near shore systems like coral reefs, mangroves, and seagrass meadows. Let's see the examples. You can say this is the deep sea here. This is the deep sea here. This we can see the pelagic sea. This is a pelagic sea. This is a sea floor. This is a sea floor here, and this you can see is a mangrove. Okay, mangrove trees are nothing but the trees that means that grow near the islands and all. And these are the coral reefs. These are the also examples of the marine ecosystem, right? Let's go to the next. Yeah. So let's go to the grassland ecosystem. What are the grassland ecosystem? Sorry. Yeah. So we are again here. Yeah. So herbivores consume grass, right?
Herbivores, what they consumes? Herbivores are the animals who eat grass, right? They consumes grass. Along with the grass, they also feed the soil with their droppings. Okay, grass के साथ साथ कभी कभी जो रहते हैं ना वो soil dropping के साथ soil को भी थोड़ा feed करते हैं. So this allows the grass to grow back and allow some sort of balance, right? अब soil है तो अब grass खाते हैं plants और soil पे कुछ feed हो जाता है उनके अंदर. तो जब बाहर से थोड़ा सा निकलता है तो ये जो soil जब अगर वो soil को feed करते हैं, soil को अगर feed करते हैं तो ये जो होता है ना ये grass को फिर से उगने में मदद करता है. ठीक है. So इसका मतलब still doesn't mean that an ecosystem is even a healthy one. Okay. अब ये नहीं कहेंगे अब ग्रास पैदा हो गया, ग्रास फिर से हो गया तो ये नहीं कहेंगे कि इकोसिस्टम बहुत हेल्दी हो गया. इकोसिस्टम्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एज दे आर बेस्ड ऑन द डायनेमिक प्रोसेस एंड दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ठीक है. अभी हम लर्न करेंगे कैसे चेंजेस होते हैं. तो इकोसिस्टम एक जगह से एक जैसे नहीं रहते हैं. ठीक है. इकोसिस्टम ना इवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है. कई सारे कार्टून्स में देखा होगा आपने कि कैसे भी कितने पोकेमॉन बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून कैसे इवॉल्व होते हैं. एक जैसे नहीं होते हैं इकोसिस्टम, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं. ठीक है. एज दे आर बेस्ड ऑन द डायनेमिक प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस होते हैं जैसे ह्यूमन भी आ गया एक सहारा बन के, है ना. तो वो भी उन्हीं के वजह से ये सब हो रहा है, मतलब इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है उस पर. ठीक है. तो वो इवॉल्व हो रहे हैं, उनका अलग तरीका रहता है ना इकोसिस्टम का अपना. तो इकोसिस्टम भी अपना इवॉल्व हो रहा है एज दे आर बेस्ड ऑन द डायनेमिक प्रोसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. Okay, then again we are here with the transformation of the ecosystem. Biotic component are living organisms that interact with their environment. Okay, that's a good thing, right? Biotic component are the living organisms that interact with their environment. I had told you this thing. And constantly transforming. As they are evolving, they have to transform, right? As they are transforming it, how the question arises, how? The big question arises, how they are constantly transforming the environment. As well, how they're evolving it, right? How the ecosystem is evolving day by day. That's the reason for that. Animals compact the soil. Okay, you have noticed that I've observed already many times. I've observed. Okay, so what they did that they compact the soil. The soil would be there, na? They compact it. You know, I hope you know about what is compact. I had taught many types what is compaction, decomposition, so on. So the animals, one thing was there that animals also contribute transformation. How they contribute is that they compact the soil. How plant contribute is that plant create a humidity or regulate temperature, and bacteria helps in microscopic world by protecting all sorts of animals from diseases and helping in the digestion process. This is what they are dependent on each other, right? They are dependent on each other. If the bacteria would be not there, everyone will get diseases and the digestion process would be not there, right? Means it would not success the digestion process. While if the animals would be not there, the soil would be not fertile as possible. While if the plants would be not there, the humidities would be not there, right? Humidity area. Okay. So like this, as they are dependent, as they are together, as they are united, this ecosystem is evolving. And ecosystem also evolves to the external or unforeseen event. Now what are external and unforeseen events that we will learn? A climate or a natural phenomenon, for example, can lead to transformation in the environment. Okay, so the climate and the natural phenomenon, climates and natural phenomena can also lead to the transformation in the environment. अब क्लाइमेट कंडीशन से भी तो होता है ना, क्लाइमेट कंडीशन या फिर कुछ नेचुरल, ये आपको हायर ग्रेड्स में पढ़ाए जाएंगे. नेचुरल फिनोमिनन क्या होता है, क्लाइमेट कैसे क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं. मैंने बस आपको हिंट के लिए बता दिया कि ठीक है, क्लाइमेट और नेचुरल फिनोमिनन की वजह से भी ट्रांसफॉर्मेशन इन द इन्वायरमेंट होते हैं. ठीक है. फिर बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट दिस न्यू वे ऑफ transformation and changes happens. So like this, nowadays changes they are with the help of animals, microorganisms and the plants. Okay, with the help of animals, microorganisms and with the plants, transformation. Okay, what is transformation is successfully done. Okay, so let's go to the next. Okay,
you will see that here is a big graph like here. So why I had made this graph, because to give a hint that ecosystem, there we can explain the ecosystem with the help of diagram. Okay, so in this net primary productivity of selected ecosystems, कितने selected चाहते हैं, कितने कौन से ecosystem थोड़े ज़्यादा मतलब active होते हैं, तो वो होता है सबसे लो पे देखिएगा डेजर्ट है. पहले हम लेफ्ट से जाते हैं. सो डेजर्ट बोरियल फॉरेस्ट पे आपको 500 अबव मिलेगा. फिर कोल्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में when we will go in next geography lessons, we will learn about different types of different types of grasslands. What are the cold deciduous forest, tropical evergreen forest? This we will learn about in the next chapter. Okay, upcoming chapters. So net primary productivity of selected ecosystem. Okay, amount of photosynthesis produced in these all. Okay, so cold deciduous forest is much, and the tropical rainforest, wow, it's much higher. And freshwater wetland, this is also much greater, right? You should take the screenshot of it and you should study about it. Okay, let's go to the next. And when we go to the next, that is how energy flows through the ecosystem. The question arises, how energy flows through the ecosystem, right? So what is the energy flowing? Okay, in simplest terms, the behavior of energy in an ecosystem, behavior of an energy is how they are reacting on it, how the process is going, right? So in simple terms, the behavior of energy is nothing but the flow of energy flow. Okay, and the flow of energy in the ecosystem is always undirectional. Okay, undirectional means known as linear. The energy flow obeys the first, second law of thermodynamics. Laws of thermodynamics we will learn in higher grades. Okay, because आपने food chain पढ़ा है? food chain. चलो मैं आपको food chain पढ़ाती हूँ. पहले food chain पढ़ेंगे, ठीक है? पहले फूड चेन पढ़ेंगे, फिर बाद में पिछले पे जाएंगे, ठीक है? पहले बेस अगर कवर हो जाता है ना, तो आगे जाने में थोड़ा सा इजी जाएगा, ठीक है? तो बेस पे चलते हैं, फूड चेन के बारे में लर्न करते हैं. फूड चेन क्या होता है? फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम टू अनदर, राइट? Food chain shows how energy is passed from the sun to producers, from producers to consumers, and from consumers to decomposers. We will learn more about what are the trophs and all. So a food chain describes the energy and nutrients move through an ecosystem. It basically shows who eats what in the ecosystem. ठीक है? Food chain जो होता है वो क्या शो, एनर्जी कैसे पास होता है एक दूसरे से अदर, सन से कैसे प्रोड्यूसर में जाता है, प्रोड्यूसर में कैसे कंज्यूमर से जाता है, और कंज्यूमर से कैसे डिकम्पोजर में जाता है. ठीक है? फूड चेन जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स जो फूड जो होते हैं एनर्जी कैसे ट्रांसफर एक दूसरे से होते हैं. ठीक है? तो ये बेसिक क्या शो होता है, कौन किसको खाता है इकोसिस्टम में. ठीक है? कौन किसको खाता है हम कैसे कहेंगे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. राइट 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 राइट. So what is food chain? Food chain describes how energy and nutrients move through an ecosystem. It basically shows who eats what in the ecosystem. Food chains are generally classified into two groups mainly. Yeah. So first was gazing food chain, second is detritus food chain. You will get the higher standards for this to read. Okay, but now we are just the basics. So what are the tropics level? This producers, consumers. Okay, so each organisms occupy the particular position in a food chain depending on its feeding relationship with other organisms. हर एक organisms का एक मतलब अभी एक प्लेस होता है. ठीक है? अब मेरा जगह यहाँ पे बैठना है तो मैं यहीं पे बैठूंगी, मैं नहीं आपके पास जाके बैठ जाऊंगी उधर सीधा जाके. ठीक है? पोजीशन. ओके, हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है फूड चेन में. तो किससे डिपेंड होता है? फीडिंग रिलेशनशिप पे डिपेंड होता है. ठीक है? किस पे डिपेंड, उनका पोजीशन किस पे डिपेंड होता है? तो फीडिंग रिलेशनशिप पे उसका डिपेंड होता है. सो फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, द पोजीशन इज नोन एज द ट्रॉपिक लेवल. ओके, ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फिर से प्रोड्यूसर में आ गए, है ना? सो इसको क्या कहेंगे हम? ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है? ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है? The position, as each organism occupies a particular position in a food chain depending on what? Feeding relationship with the other organisms. So this position is known as
trophic level. It is important to know that the amount of energy decreases at the successive trophic levels. Okay, decrease होते जाता है. अब यहाँ पे जो है ना, अब जैसे ग्रास से प्राइमरी कंज्यूमर से आ गया, अब इसको 100% एनर्जी मिल गई है ना. अब इसका जो हीट होता है, हीट में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है हमारा, ठीक है, हीट जो लगती है हमें, तो 10% ही पास हो पाती है. इधर से भी 10%, इधर से भी 10%, फिर हम बात करेंगे इधर से भी हमारा कितना होगा 10%, है ना. इधर से भी जो होगा आपका 10% ही होगा. तो 10% ही फूड चेन पास होती है, ठीक है. डिक्रीज होते जाती है ये समझ लो, क्योंकि उनकी होता है, ठीक है. सो बहुत सारे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है. पहला ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिसको कहते हैं हम प्रोड्यूसर. अभी तो प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास. सनलाइट इसको एनर्जी देता है, सनलाइट ग्रास को एनर्जी देता है, इसका 100% हो गया. अब ये अपना हीट इतना ऑब्जर्व कर देता है, तो इसका 10% एनर्जी ग्रास ऊपर में, फिर से इसका 10, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10, ठीक है. तो पहला ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? हो गया, ठीक है. फिर दूसरा हो गया हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज आल्सो नोन एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, है ना. प्राइमरी कंज्यूमर, we name it also primary consumer as we know it as a primary consumers as quite herbivores, right? These are quite herbivores, okay, as they eat grass, right, plant areas. तीसरा क्या लिखेंगे? Oh sorry, I don't have to write there, right? Sorry, I don't think you are getting my letter, but please concentrate on my voice. So first trophic level is also known as a producer, which will the plant and grass. The second trophic level is your primary consumer, which is the herbivores. The third trophic level we name it the secondary consumer. Okay, secondary consumer we name these are quite carnivores. Then again the fourth we went. The fourth was tertiary consumer. Tertiary consumers are the top carnivores, right? For example, lions and all. So let's talk about examples. ओके, एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे? प्रोड्यूसर में ग्रास हो गया, प्लांट्स हो गया, राइट. दिस आर द क्वाइट एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स. मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स आर नोन एज, तो फोटोसिंथेसिस जैसे होते हैं. सो ग्रास, ट्रीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स. देन अगेन वी वेंट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स में हो गया प्राइमरी कंज्यूमर में हो गया आपका ग्रास हॉपर्स, काउ, बफेलोज एक्सेट्रा. दीज आर क्वाइट हार्बिवोर्स. When we go to the third trophic level, which is a secondary consumer. Secondary consumers के examples हो गए birds, fishes, fools. फिर fourth trophic level पे जाएंगे तो हम होगा tertiary consumer. Tertiary consumer पे होगा examples होगा man, lion. फिर the fifth trophic level होगा decomposer, ठीक है. Decomposer like bacteria. Examples क्या होंगे? Different types of bacteria, right? Got it? What was a food chain? Yeah. Okay, so I have learned about what is food chain. Okay, so let's talk about how energy is flowing through the ecosystem. So let me talk about listen to my things, right? The various types of biotic components. I talked about various types of biotic components like autotrophics and heterotrophics. Autotrophics and heterotrophics are the types of various biotic components, right? So we had discussed in earlier articles. So these are intimately interlinked with each other by a natural independence on the food energy. The ecosystem derives all this energy required for its function from the sun. Okay, as we know, इस sun से शुरू होती है ना ये. Wait a minute, मैं erase कर देती हूँ सबको. I hope I am audible to you, right? I am or not? Okay, sorry for the disturbance. तो सन ही जर्नी स्टार्ट करती है ना. सन इसको एनर्जी देती है, तो पूरे फूड चेन की जर्नी सन स्टार्ट करती है ना. द ग्रेट प्लांट्स देन यूज दिस सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. ये सोलर एनर्जी, ये जो ग्रास है ना, ये सोलर एनर्जी को किस लिए लेती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ये लेती है, किस लिए लेती है? ताकि ग्लूकोज बनाए. किससे बनाए? फोटोसिंथेसिस से बनाए.
फिर देन सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये ग्लूकोज होगा तो इसको केमिकल एनर्जी बोलेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स, आइदर डायरेक्टली और हम कहते हैं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही पहले हर्बीवोर्स पहले डिपेंड होता है, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होता है, पहला प्राइमरी कंज्यूमर होता है, मतलब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ग्रास पे डिपेंड होता है। ओके, सो द फूड एनर्जी फ्लोज इन द इकोसिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अब इसको ये खाएगा, ये स्नेक इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगी, आउल इसको खाएगी, फिर हॉक, सॉरी ये आउल नहीं, हॉक, आउल कहाँ से उसको खाएगी, तो हॉक फिर ये मर जाएगी, तो फिर उसका बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज से फिर से एक नया लाइफ शुरू होगा, फिर से सर इसको एनर्जी देगा, फिर वही स्टार्ट, वही मतलब वही साइकिल रिपीट्स, राइट। वही साइकिल जो होता है रिपीट होता है। सो फूड एनर्जी फ्लोज इन द इकोसिस्टम थ्रू प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। फॉर एग्जांपल एक्चुअली द ग्रास हॉपर्स is eaten by snake, the snake is eaten by hawk, the hawk then when dies the body get decomposed and a new life begins. Okay, other examples if you want, the rabbit which is the herbivore eats the plants and is being eaten by a fox which is the carnivores, and the fox is then eaten by a lion which is a top carnivore. So you find a undirectional flow of energy, right? So आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, एक लीनियर पता चलता है यहाँ पे। So cycle repeats होता है from the sun to producer and then to consumers, right? So ऐसे ही एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। So इसमें क्या पढ़ा है, तो समझे एनर्जी कैसे फ्लो होता है इकोसिस्टम में, इधर से उधर से उधर से। अब ये प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गया, ठीक है, सॉरी, तो ये प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गया। फिर हीट में जो है ना 10% एनर्जी, 90% एनर्जी जो होता है हीट में व्यस्त हो जाता है, और 10% जो होता है वही एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल को पास होती है, ठीक है। तो पहला सोलर एनर्जी से स्टार्ट होगा, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूसर्स पे जाएगा, प्रोड्यूसर हो गए प्लांट्स, प्लांट से जाएंगे हर्बीवोर्स पे, हर्बीवोर्स पे जाएंगे कार्निवोर्स पे, कार्निवोर्स पे जाएंगे डिकम्पोजर पे, डिकम्पोजर पे जाएंगे एबायोटिक केमिकल्स, मतलब डिकम्पोजर्स पे जाएंगे एबायोटिक केमिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल्स एक्सेट्रा। Okay, so in this entire process the living organisms continuously uses up a certain amount of energy to perform a bodily function. वो कुछ मतलब respiration, digestion, movement एक्सेट्रा। अगर हम इंसान है, हम ब्रीथ ऑन करने के लिए, अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए, हिलने के लिए, डुलने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं ना। सो इन दिस इंटायर प्रोसेस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं करते जाते हैं, अपना एनर्जी का यूज़ करते जाते हैं, ठीक है। And yes, energy, note that, okay, this is very noting point, that energy is always lost when transferred from one organism to another. At each step of the food chain, only 10% of the energy is passed on to the next level, while approximately 90% of the energy is lost as the heat. ठीक है, 90% किस पे व्यस्त होता है, हीट पे व्यस्त होता है, ठीक है। किस पे होता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, हीट पे। इवन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी आते हैं हीट सब पे, ठीक है। तो ये जो हीट है, ये भी हीट है, ये भी हीट है, क्या होते हैं 90% ले लेते हैं, ठीक है, और 10% ही क्या होते हैं पास होता है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कितना पास होता है, तो कितना लिखिएगा 10% ही क्या होता है पास होता है, ठीक है। तो इधर भी देख लीजिए वही है, मतलब अब नीचे एक्वाटिक में भी लैंड में भी दोनों भी यही होगा, ठीक है। फिर से नीचे जाएंगे तो ये बैक्टीरियाज है, ठीक है, स्मॉल बैक्टीरियाज, ठीक है। ये पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट से। प्लांट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, समझ लो ये 1 सेल मैग्नीफाइड है। सो लेट्स सपोज प्लांट है, प्लांट ये खाएगी, ये प्लांट को खाएगी, फिर ये इसको खाएगी, फिर ये इसको खाएगी, फिर इसको खाएगी ये, फिर मर जाएगी, फिर ये होगा, फिर से एक नया लाइफ शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फिर सेम होता है। अब लास्ट है, इसका मैंने शायद से टाइटल दिया था, शायद ये डिलीट हो गया है, तो इसको कट करके लिख लेना। ये क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बताया है, फूड वेब। अब आप इमेजिन करो, ओके, आप क्या करो, इमेजिन करो, सॉरी, आप इमेजिन करो कि यार इतना बड़ा अर्थ है, उसमें एक फूड चेन कैसे सरवाइव करेगा, है ना। उसमें बहुत सारे फूड चेन होने चाहिए, तो वही उसको जो इकोलॉजिस्ट होते हैं ना, क्या नाम देते हैं उसको, फूड वेब।
Food web can be defined as a network of food chains that are interconnected at various trophic levels so as to form of a number of feeding connections amongst different organisms to biotic community. It is also known as the consumer. Okay, consumer resource system. So now we will learn about what is a food web, right? What is a food chain and what is a food web? There are very much difference between what is a food chain and what is food web. So we are going to learn about that only. So calm. Okay, please calm down. We are going to learn about the food web. Yes. So food web can be defined. How the food web can be defined is a network of food chain which are interconnected at various trophic levels so as to be formed as a number of feeding connections amongst different organisms or biotic community. ये एक फूड चेन नहीं होता, दुनिया में बहुत सारे फूड चेन होते हैं. तो बहुत सारे फूड चेन एक कनेक्शन अगर कर देंगे हम तो क्या हो जाएंगे, उसको क्या नाम देंगे, इकोलॉजिस्ट उसको क्या नाम देते हैं, फूड वेब. इकोलॉजिस्ट मतलब जो इकोलॉजी को स्टडी करता है, ठीक है. इकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो इकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो इको मतलब इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, इको सिस्टम को स्टडीज. ओके, स्टडीज. So food web can be defined as a network of food chain which are interconnected at various trophic levels so as to be form a number of feeding connection amongst different organisms or biotic community. अब जो होता है फूड वेब क्या होता है, हिंदी में बता दूं मैं, इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है. तो फूड चेन, सारे फूड चेन को मिला के रख दो, क्या हो जाएगा आपका फूड वेब. एंड व्हाट इज आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज द कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम. तो यहाँ से हम अपना ये सीरीज कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट अभी भी और एक पार्ट है इन्वायरमेंट, क्लास 7 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 1 का ये पार्ट 2 था जिसमें हमने पढ़े थे इकोसिस्टम के पार्ट्स. कितने पार्ट्स थे, वेट अ मिनट. या सो कितने, सॉरी चिल्ड्रन, या कितने पार्ट्स थे इकोसिस्टम के, यहाँ पे ब्लैंक मैंने इसलिए रखा था समझाने के लिए. इकोसिस्टम के कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट हुए जिसका नाम था टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, राइट. व्हाट वर द 2 पार्ट्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. एक्वाटिक के बारे में पढ़ा, टेरेस्ट्रियल के बारे में भी पढ़ा, एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा. फिर उसके बाद हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फूड चेन के बारे में पढ़ा. फिर हमने फूड चेन के बाद एनर्जी कैसे फ्लो होती है, एनर्जी कैसे फ्लो होती है वो पढ़ा हमने. एनर्जी फ्लो के बाद फूड वेब क्या होता है वो भी हमने जाना क्या होता है, ठीक है. तो आई होप सब समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट पार्ट में और एक पार्ट, लास्ट पार्ट और एक पार्ट है, पार्ट 3, 3 पार्ट्स है इसमें. तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मॉडिफिकेशन. ह्यूमन कैसे मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को, क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, इकोसिस्टम को कैसे बचाया जा सकता है. इकोसिस्टम का जो लास्ट होता है ह्यूमन, उसमें साफ ह्यूमन से आएंगे क्योंकि बिना ह्यूमन वाले टॉपिक्स मैंने आज कवर करवा लिए हैं. तो कल मतलब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन कैसे मॉडिफाई करते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है, और बाकी सब पढ़ेंगे कल, ठीक है. सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर एंड यस सब्सक्राइब इट एंड टर्न ऑन द बेल. थैंक यू.